Good evening, everybody. Hope you are back. So, today's topic is learned helplessness. Have you ever seen an elephant, you know, who was small, a baby elephant who was tied to to a small log, which was inside the soil. छोटा सा एक log है with a small rope. Hmm? And at that time, the baby elephant could not move, but the log is same. Maybe the chain is also same small chain. Hmm? And it was just, dug inside the soil and it's just there. बहुत कोई strong कुछ नहीं है उसमें. Hmm? And still the elephant has grown up and the elephant does not try to release itself from that chain. Why does it happen? What do you think? What is the reason the elephant does not, it doesn't believe that it can free itself from that chain? Elephants are, when they are huge, they are very powerful, right? Very strong. Hmm? What do you think? Any answers? Or there are only spectators and listeners here? Yes, Suchi unmuted and again muted. Yeah, I was feeling not able to find the key. Yeah, it is because there is a mind blocking. Himself is feeling I do not have that energy and I can uh, come out of this situation. So feeling himself doubtful about himself, his I do not energy, have the energy to come out of the situation, right? right? Doubting Right. that he cannot come out of this Yeah. situation. Yes. And Ria wrote Abhyash. Yeah. There was an experiment done on dogs. Few dogs were taken. They were not, they were normally free dogs. They were all suddenly put inside a cage. And the cage was electrocuted. All the dogs in the beginning, they wanted to free themselves from the cage because they were scared. They are not used to staying in a cage. So whenever they tried to free themselves from the cage, because it was electrocuted, they got the shock and they came back. Again, they tried. They got the shock and they came back. And again, they tried. So this happened for a few times. And then after some time, the electrocution was, the electricity was put off and they were free from that. But despite of that fact, the dogs did not try to touch the cage or try to come out. They stopped barking, they stopped shouting, they stopped wanting to come out of the cage and they only slept. Yeah. So, what is the reason behind that? Why did they feel like that? Think, think, think. Don't just wait for me to give you answers. Think. Hmm? This will help a good discussion. This will help a good satsang. This will help a good seva also if you are able to share something. Hmm? क्या लगता है? कौन बोलेगा अभी? क्या मीनाक्षी क्या आज सुन ही रही है? She's only listening. Yes, Didi. So, what happened to the dogs? They actually, what happened? They gave up hope. Okay. Even if the electrocution was over of the cage, they gave up hope. They started believing, they started feeling that they do not have any means to come out of that cage. Yeah. So this experiment proved a very important term in psychological world.
is called learned helplessness. Okay. Learned helplessness is a certain kind of emotion or a kind of, act, like kind of behavior that we develop. कभी कभी ऐसा होता है, sometimes it happens out of only one shock. Big trauma happens, maybe rape, sudden murder in front of you. Something happened about your own family member was murdered, or something happened, rape happened, and suddenly you get into such a shock, and you start believing that no, it's there, everything, it's hopeless, nothing is possible, I will fail, the whole world is dark. Yeah. Sometimes it happens with only traumas can create like that. कभी कभी traumas, लोगों को, you will see many people after trauma, they become very lazy. Have you seen people after trauma, murders, rapes, physical abuse, and suddenly, these people become very lazy. You will see normally they're very active and doing a lot of things, but maybe, a few rounds of physical abuse or रेप्स, मर्डर्स, कुछ भी, इवन इमोशनली भी आप किसी को बहुत गंदे से बोलते रहते हो, इट्स ऑल्सो. यस वैशु, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, या वैशु, यू वांट टू शेयर? या प्लीज शेयर इट, इट इज लाइक अ सेवा. सबके साथ थोड़ा जितना हो सके, जब जितना आपको लगे ये आपके, आप कर पाओगे, यू कैन शेयर इट. नॉट योर मेन, बट व्हाट डज ट्रॉमा डू टू यू, वैशु? कैसा फील होता है? लेजी लगता है ना? हाँ दी। और जब ये मेरे साथ ऐसा होता भी था, मतलब हम्म. जैसे अगर कोई सामने वाला अपना गुस्सा मुझ पे जब निकाल रहा हो ऐसा कुछ, तो मैंने वो फील। अगेन इट अनम्यूट हो गया वैशु. हाँ दी, तो मैंने वो फील किया है कि मतलब उनका गुस्सा ना शायद किसी दूसरे को लेके था, लेकिन कहते हैं ना कि किसी ऐसे इंसान पे गुस्सा निकालना हाँ. जो हाँ भी नहीं बोल सकता है, ना भी नहीं बोल सकता है। हाँ, और आपका रेस्पॉन्स क्या है? आपको लगता है कि होपलेस है, कुछ करने से फायदा नहीं है, इसलिए सोते रहो ना? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ दी। आपको उठने का मन नहीं करता है, सिर्फ सोते रहो लगता है. राइट. और ऐसा फील होता है कि गलती भी हमारी ही है, तो हाँ, वो कुछ अंदर ही करने का, अंदर ऐसा हाँ. लगता है कि हाँ. कुछ अच्छा ही जैस नहीं लगता कुछ करने का। हाँ, कुछ होपलेस होपलेस. जैसे आप जॉब के बारे में भी होपलेस हो गए हो, राइट वैशु? कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ जी कहाँ जी। कहीं पे नहीं ट्राई कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो. क्योंकि मुझे भी वो ही लग रहा है कि अगर मैं कुछ हम कुछ करेंगे भी, या मैं जैसे अपने पे बोलूं, तो अगेन फिर वो फिर से हिट करता है वो चीज, जैसे वो ट्रॉमा फिर से ऐसा फील होता है कि हाँ, वो आपको डेड, अभी भी वो चीज है। हाँ हाँ, आपको डेड. यू नो व्हाट हैपेंस इज, जब लोग बहुत ट्रॉमा से जाते हैं, या फिर सीरीज ऑफ डिफीट्स एक के बाद एक, कोशिश की, एक तो एकदम भयंकर एक ट्रॉमा हो सकता है किसी के साथ. हाँ. या फिर किसी के साथ कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ डिफीट्स, फेलियर फेलियर, बार बार धक्का मिल रहा है, बार बार जीवन में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कभी भी शांति नहीं है, कुछ ना कुछ धक्का मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है. ओके. ऐसे लोग क्या होते हैं पता है? ये जो रेप्टिलियन, देर इज अ ब्रेन इन आवर, देर आर डिफरेंट ब्रेन्स. एक है एनिमल, रेप्टिलियन एनिमल वाला, जो हम एनिमल्स भी है ना, तो वो एनिमल वाला ब्रेन में भी हम में है. तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो लोग, उनके साथ जब, थ्री वेज ऑफ पीपल, देर आर थ्री वेज पीपल फाइट. कोई अगर कोई बाहर से कोई एनिमल अगर आपको अटैक कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप तीन तरीके से फाइट करोगे. ओके. पहले तो आपको लगता है कि वो एनिमल के बराबर आपका शक्ति है. आप जज करोगे, अच्छा ये शेर है, मैं चीता हूँ, थोड़ा कोशिश कर सकते हैं लड़ाई करने का. तो देन यू विल डू इज यू विल फाइट फर्स्ट. अगर थ्रेट भी लगे, कोई कुछ भी हो आपके जीवन में, आप पहले फाइट करोगे, बिकॉज हम्म। आपको लग रहा है कि ये आपकी शक्ति के समान, हल्का फुल्का तो है, कोशिश कर सकते हो. लेकिन अगर आपको लगे कि ये शेर है और आप चूहा हो, फाइट करने का कोई फायदा नहीं है. ओके. तो फिर वो दौड़ेगा, स्पेशली वो अगर हिरन होगा, उसमें दौड़ने की शक्ति होगी. ओके. तो वो दौड़ेगा.
बहुत दौड़ेगा, बहुत दौड़ेगा, बहुत दौड़ेगा। वो कोशिश करेगा दौड़ने का। बट एक टाइम के बाद अगर वो शेर पूरा हिरन के पास आ गया है और हिरन को पता है कि अभी तो वो खा ही जाएगा, हाँ, खा जाएगा उसको। तो कभी कभी आपने देखा है कुछ कुछ हिरने हैं, have you seen, sorry, whenever I'm speaking in English, please Tonmoy remind me, okay, because since quite few weeks I was speaking in Hindi, so I go back to Hindi, okay. No But problem. Tonmoy, please, have you understood what I spoke till now? Yes, yes. Yeah. So what happens is that you will see that these deers, all these deers, or ये जो these deers, they will play dead. Have you seen? आपने देखा है एनिमल्स आते हैं ना, दे सडनली वो ऐसे, actually they are not dead, and they are not even, they're fully healthy, but the animals will play dead, freeze, they will freeze and play dead, so that the even if the because normally cheetahs, lions, tigers, they will never eat dead animal. This is normal rule of all big carnivorous animals. They normally don't eat dead animals. Dead animals are only eaten by vultures. और vulture आने में तो बहुत टाइम है, तब तक तो dead बना रहूं ताकि ये lion, so that this lion does not eat me up. The same thing happens with us. हम पहले, हमारे साथ कोई ट्रॉमा होता है, रेप होता है, कुछ होता है, तो पहला, अगर हम में शक्ति है तो हम फाइट करेंगे, हाँ, और अगर शक्ति नहीं है तो दौड़ेंगे। अगर हो गया, यू नो हमारे साथ कुछ हो गया, ये ना फाइट कर पाए ना दौड़ पाए, अचानक से इतना बड़ा एक शॉक लग गया, तो हमारा और एक रेस्पॉन्स होता है, एंड दैट रेस्पॉन्स इज टू प्ले डेड, प्ले डेड। एंड दिस प्लेइंग डेड, समझ रहे हो वैशु, दैट वी एक्ट एज इफ वी आर डेड, वी स्टार्ट बिकमिंग लेजी। लोगों को लगता है कि हम लेजी हो गए हैं, हमको कुछ करने का मन नहीं, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं जीवन में, हम तो बट out of pain, out of that trauma, we start playing dead. And ये dead is, again, you can connect it to learned helplessness. ये ऐसे भी हो सकता है कि it some happens with some another way, is that कि trauma हुआ, shock हुआ, and why do we play dead? Why do we play dead? Also, one, अभी तो कोई वो नहीं है, अभी तो ना एनिमल है ना कोई है। One reason is we still, after the trauma, the unsafety is still there, unsafe feeling is still there in you, and or multiple setbacks, failure, एक टाइम के बाद आप बहुत अनसेफ, कोई भी कुछ करने में आप डरते हो, लगता है कि कुछ भी करूंगी तो उसमें भी फंस जाऊंगी, राइट वैशु? जी दी। ऐसा लगता है ना कि इससे तो अच्छे कुछ ना करूं, घर पे बैठ रहा, मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं बड़े बड़े झमेले में पड़ जाती हूँ, तो जी इससे दी। अच्छा है तो मैं घर पे ही बैठी रहूं और मैं सेफ रहूंगी। सो दिस इज व्हाट वी डू, एंड इट कम्स फ्रॉम आइदर टू सेफ, वो फ्रीज, डेड, प्ले डेड वाला हम एक्ट करते हैं, या फिर इट कम्स आउट ऑफ टोटल हेल्पलेसनेस के अभी शायद मेरा सिचुएशन चेंज हो गया है। I'll give you an example that Vaishu, I'm not saying that I am here to save all of you, whatever. I'm just giving an example, okay? Vaishu now has all of us, has us, Satsang, has me, has all of you to support her in her life. But she had a lot of trauma in her past. But still, after all these things also, जहाँ पे अभी समय उसका चेंज हो गया है, वैशु का लाइफ पूरा टाइम चेंज हो गया है, स्पिरिचुअलिटी में आ गई है, सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग, बट स्टिल वो एलिफेंट वाला दिमाग है ना, वो आ जाएगा, फिर भी लगेगा कि अरे जीवन तो होपलेस है, कुछ करके क्या फायदा, क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है, जीवन तो कुछ नहीं बनेगा, इससे तो अच्छा मैं सोई रहूं, राइट? राइट दी। तो what happens with learned hopelessness का है, even I'm telling many of you, sometimes it's not just trauma, back to back, जब setbacks, failures, या फिर हमेशा लगता है मैं ही क्यों 10 साल 15 साल से मैं सफर कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसे जीवन में क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम ज्यादातर ऐसे लोगों के जीवन में we start learning helplessness, a behavior, we start thinking that अभी शायद आपका जीवन चेंज हो गया, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप शायद आपका लाइफ बहुत चेंज कर पाओगे, बहुत कुछ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्टिल आपका हैबिट ना आपको वो लेके आएगा,
आप विक्टिम फील करोगे, आप सोचोगे नहीं ये क्या करके कोई फायदा है, एग्जाम दूंगी तो मैं तो फेल ही करूंगी, क्या फायदा। तो बिकॉज आप ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ एग्जाम दे रहे हो इसलिए आप फेल कर रहे हो। समझ रहे हो, होपलेसनेस, लर्न हेल्पलेसनेस बिलीफ के साथ आप एक्शन ले रहे हो। यू आर टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन लर्न हेल्पलेसनेस के वो हाथी बड़ा हो गया अभी भी लगता है कि मैं तो चेन्ड ही हूँ, क्या फायदा, वो कुत्ता जैसा, आई गिव अप एवरीथिंग। गिव अप एवरीथिंग के साथ आप फेल, आप एग्जाम में, और एक साइड है, दो साइड है। एक साइड बोल रहा है कि गिव अप एवरीथिंग, क्या फायदा, इतना मैं जीवन में फेल कर चुकी हूँ, जीवन मेरा इतना पेनफुल है, क्या फायदा। दूसरा साइड बोल रहा है कि नहीं, कि तुमको जीवन में करना है, यू कैन नॉट गिव अप, यू आर अ मेडिटेटर एंड एवरीथिंग। ये दोनों में फाइट होता रहता है। इसलिए आप कोशिश भी करते हो विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बट आप खुद ही आपका खुद का ब्लॉक बन जाते हो। आप कोशिश भी कर रहे हो, शायद नया जॉब में अप्लाई कर रहे हो, या फिर नया कुछ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज द वन पार्ट इज वांट्स टू इम्प्रूव, राइट, बट द अदर पार्ट सेज नहीं, क्या फायदा। तो दैट्स व्हाई समटाइम्स यू विल सी you fail. You are applying in somewhere and you're failing. You apply for jobs, you fail. You do something and you fail. Or whatever you do, sometimes everywhere your life is filled with challenges because you are approaching life with a thought process that I am going to fail again. What is the point of trying? That's when we start becoming lazy. We start procrastinating. We start, acting dead. So, first of all, हाउ टू नाउ, यू मस्ट बी आस्किंग कि कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है, सब सुन रहे हैं, इतने लोग आज ज्वाइन किए, सब सुन रहे हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन माइंड? आई वांट टू हियर व्हाट आर द क्वेश्चंस पॉपिंग अप, व्हाट आर द क्वेश्चंस। एक तो क्वेश्चन होगा, राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। Yes, Didi, is what you discussed all is happened with me. So I want to know how to release from this situation, from this fighting. So I don't know. I wanted to hear this, that you should be asking the next कि दीदी इसको solve कैसे करें। So Meenakshi, finally Yeah, आप, but yes Meenakshi, স্টার্টিং এ মেডিটেশন হলে যদি আমি পুরো চুপ হয়ে যাই আর তখন কথা বলতে ইচ্ছে করে না। yes. So but you have to be inter सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब ही है तो डिस्कशन मीटिंग बोलते हैं उसको, सत का संग। तो सत का संग के लिए तो संग चाहिए ना। अकेला आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हो। तो ये না कहानी सत দিদি, हुआ। But at least the evening batch can talk, and I'm very happy that Komalika and Tanmo has joined in the evening. That's why they are able to talk. Otherwise, morning is very difficult for yes. them to talk. At least they are talking. Yes, Vaishu, you wanted to share something? वैशु, आपने अनम्यूट किया था। नहीं दी, यही कि आपने जो बोला वो एग्जैक्टली जो बिल्कुल सही है दी। हाँ, तो अगर सही है तो अभी इसको चेंज कैसे करे? चेंज कैसे करे? पहला इज अवेयरनेस। पता चल गया, अरे मैं ये कर रही हूँ, मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ, मैं लर्न हेल्पलेसनेस, मैंने ये बिहेवियर सीख लिया है मेरे जीवन में, मेरे ट्रॉमा ने मुझे प्ले डेड सिखा दिया है कि प्ले डेड डेड तो सेफ रहोगे, प्ले डेड देन यू विल बी सेफ। ओके, तो अभी मुझे उससे जगना है ना। मुझे उस वो एक पार्ट जो बोल रहा है कि मरे रहो, मरे पड़े रहो, कुछ मत करो, मरे पड़े रहो, उसको मुझे बोलना है कि नहीं, अभी मैं सीख गई हूं कि मेरा तो लाइफ अभी चेंज हो रहा है, इट कैन नॉट बी द सेम। दूसरा वाला पार्ट से मुझे आई हैव टू, फर्स्ट इज इनर चाइल्ड कॉन्टिन्यूसली, बिकॉज इट्स एन इनर चाइल्ड, राइट। ट्रॉमा आपका कुछ साल पहले हुआ है, एक दिन का छोटा सा भी आपका सेल्फ हो, वो आपका इनर चाइल्ड है। आपका यस्टरडे वाला सेल्फ इज योर इनर चाइल्ड, राइट। सो आप उस इनर चाइल्ड को आप बोलोगे कि you can be successful, you can do great things, I am with you, I will give you the courage, I will give you the safety, because इस बच्चे को सेफ्टी की बहुत जरूरत है। फ्रीज, राइट, ये बच्चा फ्रीज मोड में चला गया है, उसको अभी कुछ नहीं चाहिए। उसको कभी कभी इतना इतना चैलेंज ना,
अगर वहां पे उसको गोल्डन प्लेट में खाना आ जाए, प्यार आ जाए, कुछ भी चाहिए, वो इतना सफर किया है, उसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सेफ्टी दे दो बस, मेरा दिमाग का माथा पिचड़ी मत करो। तो इस बच्चे को पहले सेफ्टी दो कि आई यू आर सेफ विथ मी, यू आर सेफ विथ मी, यू आर सेफ विथ मी। आज से मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आज से मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा, मैं तुम्हें करेज दूंगा, मैं तुम्हें पावर दूंगा, मैं तुम्हें विजडम दूंगा, लाइफ को हर ऑब्स्टेकल को ब्रेक करने की मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। गणेशा, फॉर 11 days we meditated. Once in a while we meditated on Ganesha. What is the energy of Ganesha? To overcome obstacle. Have the energy to fight and overcome obstacles. मैं तुम्हें पावर दूंगा हर ऑब्स्टेकल को फाइट करने का, मैं तुम्हें बिलीव दूंगा कि यू कैन। एंड नाउ ये तो है। और एक चीज में होप, उस बच्चे को होप देना है, सब पॉसिबल है। वो तुम्हारा पास्ट है, वो तुम्हारा पास्ट है, वो तुम्हारा प्रेजेंट नहीं है। एंड उस बच्चे को ये भी समझाना है कि वो जो भी उसके साथ हुआ वो एक पार्ट था, उसका फुल स्टोरी नहीं है वो। दैट इज नॉट द किड्स फुल स्टोरी, दैट वाज जस्ट वन पार्ट, or maybe for many years, but that's over. Tell the kid that is over. You can now create on your own destiny, you can create your own life with the power of meditation, with the power of inner child and manifestation. Second is shifting mindset from hopelessness to hopefulness. Okay, so main देखो theme of this is that आप होपलेस फील कर रहे हो, इसलिए लर्न हेल्पलेसनेस फील कर रहे हो, इसीलिए इस आज का जो टॉपिक है वो लर्न हेल्पलेसनेस है। देन इट इज शिफ्टिंग योर माइंड फ्रॉम लर्न हेल्पलेसनेस टू नाउ, ये भी आपने सीखा है ना, आपने सीखा है ये बिहेवियर पैटर्न, आपने सीखा है लर्न हेल्पलेसनेस, यू हैव लर्न दिस, राइट? सो नाउ यू हैव टू लर्न होपफुलनेस। इसको आपके दिमाग से हटाने के लिए आपको नए से अभी नया बिहेवियर सीखना पड़ेगा। व्हाट इज द नया बिहेवियर? होपफुल। हर चीज में होप रखो, हारो तो भी सोचो कि अरे रिच डैड पुअर डैड हमने जो कितना किया है ना, वो ऑथर क्या बोल रहा है कि सारे रिच पीपल वो बहुत फेल करते हैं, बट दे फेल एंड दे लर्न फ्रॉम दिस लेसन। दे डोंट से कि अरे मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। दे आर होपफुल, दे लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड थिंक ओके इससे मैंने सीखा है, आई थिंक आई कैन अप्लाई इन सम अदर एरियाज इन बिजनेस। तो फ्रॉम लर्न हेल्पलेसनेस टू लर्न होपफुलनेस, this is what is the shift that you have to bring. And for that shift, what you have to do is that some people who have gone through continuous, I know a few of you, and friends, for them what you have to do is that आपको every day छोटा छोटा गोल रख के उसमें you have to win over that, you have to win over those goals. every day आप छोटा छोटा चीज करोगे और उस पे खत्म करो काम को, आधा मत छोड़ो। जैसे वैशु इज इन she's a beautician, she loves doing all these things. खत्म करो, आज एक टारगेट करो कि मुझे एक कस्टमर को मीट करना ही है, मुझे डर लग रहा है घर से बाहर निकले में, बट मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। डिड यू गेट इट वैशु? जी दी। मैं जाऊंगी, आज 2 कस्टमर टारगेट करूंगी, मेरा मन नहीं है जाने का, मुझे डर है, वो ट्रॉमा मुझे फिर से याद दिलाता है, बट मैं फिर भी जाऊंगी ही जाऊंगी। दिस इज हाउ। छोटा, अगर 2 डर लग रहा है तो एवरीडे एक टारगेट करो कि मैं एक कस्टमर को टारगेट करूंगी एवरीडे, एटलीस्ट एक से स्टार्ट करूंगी, फिर तो अनलिमिटेड, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भूल गई, मेरा ट्रॉमा वोमा सब गया काम का, अभी मुझे नए से जीवन, होपफुल होके जीवन बिताना है। ओके, एग्जाम फेल करोगे, एग्जाम दे रहे हो लेकिन विद द थॉट प्रोसेस क्या फायदा एग्जाम देने का, फिर से फेल करूंगी, तो बोलो कि इस बार कुछ अलग होगा, इस बार तो मेडिटेट कर रही हूँ, इस बार फेल करो, अगर फिर भी फेल कर रहे हो, कर्मा है कुछ है, फिर से बोलो इस बार तो कुछ अलग होगा। और एग्जाम के लिए क्या होता है, मे बी समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू, लर्न हेल्पलेसनेस में क्या होता है, कभी कभी आप बिकॉज आप इतने हेल्पलेस हो गए हो, इतने होपलेस हो गए हो, आप एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम तो दे रहे हो बट अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देन what you are going to do, finishing small task every day। अपने आप को बिलीव करो कि मुझे तो वहां रीच करने के लिए छोटा छोटा टास्क कंप्लीट करना है, तो मुझे एग्जाम के लिए अच्छे से, आज मैं कितना घंटा पढ़ूंगी, आज मैं एग्जाम, बहुत बड़ा टारगेट मत रखो। स्टार्ट जब करो, अच्छा एज फॉर एग्जाम्पल यू हैव फेल्ड एन एग्जाम, यू हैव अनदर
1 or 2 months to appear for an exam. तो 2 महीना है, तो एवरी डे छोटा गोल रखो अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आज मैं कुछ भी हो जाए 2 से 3 घंटा तो पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, पढ़ूंगी, कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगी। एवरी डे सोचो, बड़ा मत सोचो। एवरी पीपल who have a lot of trauma, and they go into learned helplessness, they also become very inconsistent, indisciplined. Okay, in my life also, my I'll give you an example. Inconsistent, indisciplined, as for example, my for a long time, my Saturn बहुत अच्छा हो तो भी आपको सैटर्न बहुत लेट में रिजल्ट देगा। आप ट्राई करते रहोगे बट सैटर्न विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। एंड जब देगा छप्पड़ फाड़ के देगा। और सैटर्न किसी का बुरा है तो वो कभी भी वो ट्राई करते रहोगे, आपको रिजल्ट एक तो लेट क्या आपको कभी नहीं रिजल्ट देगा। So these people, sometimes you will see 30-35 साल तक, from till 30-35, these people might be, doing a lot of things, trying a lot of things, thinking and all these things in my life, in many areas. I would see, and why did I take this topic? Because it is my own personal example. मुझे लगता था मैं बहुत सिंसियरली बहुत कुछ करती हूँ, but I'm failing. And Saturn is so good. And thankfully, my Saturn is very powerful. Saturn जिनका powerful है ना, they are very ethical people बोलते हैं। They don't do any, তোমারও কি Saturn কি খারাপ না ভালো মীনাক্ষী? আমি তো যাই, এটা তো আমি জানি না দিদি, কিন্তু আমি তো বারবার ফেলিওর হচ্ছি। Yeah. So till 30-35 you will Saturn people जिनका Saturn बहुत अच्छा है उनको भी continuous failures मिलते हैं, जिनका Saturn बहुत बुरा है उनको भी continuous failures मिलते हैं। Saturn जिसका चार्ट में बहुत बुरा है और बहुत अच्छा है, मेरा चार्ट में बहुत अच्छा है, my Saturn is very good. And people जिनका Saturn बहुत अच्छा होता है बोलते हैं कि जब देता है ना सैटर्न छप्पड़ फाड़ के देना स्टार्ट करेगा। 35-40 के बाद आपको छप्पड़ फाड़ के देगा, बिकॉज सैटर्न वेरी गुड का मतलब है दीज पीपल आर वेरी एथिकल, वेरी मॉरल, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर्स हैप्पीनेस। जैसे गरीब लोगों को के बारे में सोचता है, उनके बारे में सोचता है, वो हमेशा अच्छा करता रहता है। सैटर्न जिसका बहुत अच्छा है, दैट मीन दीज पीपल आर ऑलवेज वेरी एथिकल। ओके, वो कुछ गलत काम भी करेगा तो उसको डर लगेगा कि ये ठीक नहीं है, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए। ओके, बट फिर भी देखो, आई हैव सफर्ड सो मच। कुछ भी करती थी, आई वॉज फेलिंग, एंड देन व्हाट हैपेंस, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू बिकम लेजी, यू डोंट फील लाइक ट्राइंग एनीथिंग। क्या फायदा इसमें भी तो मैं फेल ही करूंगी। Then I had to work on myself. Thankfully, with all these techniques I'm learning and I'm applying, I'm also helping all of you to realize you have to break this pattern. एक कर्मा है जो आपका शायद आपको जन्म लिए है ऐसे कर्मा के साथ, जहां पे आपको कंटिन्यूअसली सेटबैक्स होगा, बट आप गिव अप नहीं कर सकते हो। फिर वो दूसरा वाला एक प्रॉब्लम आ जाता है, वो है लर्नड हेल्पलेसनेस का, जहां पे देन यू विल नेवर बी एबल टू विन। शायद कर्मा कट गया है, सब कुछ कट गया, फिर भी आप अगर सोचते रहो मेरा तो जीवन ऐसा ही है, तो आप कभी विन नहीं कर पाओगे। सो डिड यू गेट इट मीनाक्षी? नाउ यू हैव एन एग्जाम इन 1 more month, so you have to Yes, दीदी। you have to prepare Yeah, yourself कि मैं I 2 घंटा understand. दूंगी, 3 घंटा दूंगी। you have to have a very calculative approach कि नहीं बहुत हो गया, फिर Yeah. I will again try to change my mentality from hopelessness to hopefulness. Okay, খাও ডোনাট এখনো নেওনি? do you have any questions? कोई क्वेश्चन है या फिर if you have, हाँ मीनाक्षी কিছু বলছো? নেটের মনে হয় প্রবলেম হচ্ছে, যে আটকে যাচ্ছে, আমি কথা বুঝতে পারছি না। Okay, no problem. Thank you very much everybody. Please, this is a very important, 2 দিন সব ঠিক হইতে না হইতে 2 দিন পর আবার খারাপ হয় দিদি। Yes, one is friends, network problem. Okay, I got it.
Acha, Ria is also sharing that her life is also like this. 2 days it's good, third day again it is full of trouble. Again, 2 days it is good, third day it is full of trouble. Okay? Some people are born with that kind of challenges. I am born with that kind of challenges. My life is never easy, friends. And see, that is the reason मैं, बहुतों को लगता है कि मैं बुक पढ़ के, मैं बुक पढ़ के एक्टिंग करके तुम लोगों को बुक शेयर करती हूँ अगर तुम लोगों को लगे माई लाइफ इज एन एक्सपीरियंस। मैं इतने स्ट्रगल कर चुकी हूँ हर एरिया में कि मैं हर एरिया में मुझे पीएचडी पीएचडी मैंने ले लिया है that's why I can give such beautiful counseling and guidances. But देखो, it's beauty also, right? Saturn has given me so much of, शनि ने मुझे इतने जीवन में तकलीफ दिया है कि शनि ने मुझे वाइज बना दिया है Okay, don't you want that for yourself, Komolika, Vaishu, and Ria, whoever has said that? চাও না নাকি নিজের জন্য कि you don't want to become wise like me? तो प्रिपेयर हो जाओ ना, थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत हम एक साथ में सत्संग में सीखेंगे। Okay, let me read what she's saying. মেডিটেশন করার পর থেকে আমি সব কিছু ভুলে, let me see. She writes in Bangla, and my Bangla is very, I have to read it very slowly. Okay, let me just read. Can somebody who reads Bangla very nicely, Swagata, can you read Ria's Bangla? Swagata, can you read? দেখো হ্যাঁ মেসেজে। হ্যাঁ ও লিখেছে মেডিটেশন করার পর থেকে আমি সবকিছু রিল্যাক্স ভাবে নিতে পারি দিদি এখন। Yes, good, very good. সেটা আমারটাও ও বলে দিয়েছে। Yeah. And also be prepared that ऐसा नहीं है कि challenges भी आएंगे, because the karma, past life and everything, sometimes you'll feel like giving up, sometimes all these things happen. But remember this, you cannot develop a victim mentality, you cannot develop this behavior, learned helplessness behavior. ये मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दिया है फ्रेंड्स, एंड मैं हमेशा उसी टॉपिक को चूज करती हूँ सो दैट आप लोग सफर ना करो जो मैंने सब, that's why these topics, so that why are satsang, why are someone who is a little bit senior than you is sharing all these things, ताकि you learn from my experiences so that you don't suffer. You have learned that this can happen, मैं एक habit बना सकती हूँ, so then you have to work on developing hopefulness in your life. Okay, thank you very much everybody, have a great evening, see you একটা tomorrow. বলতে চাই। You too. Thank you. Thank থ্যাংক you, ইউ দিদি। bye bye. বাই।